Hello everyone. In the last lecture, we had a look at the first part of this topic, which is set theory. In this lecture, we will have a look at what relations are and the different types of relations. So relations में set theory के काफ़ी concepts use होंगे. So it is better that I give a quick recap of what all was covered in the last lecture. तो quickly देख लेते हैं कौन कौन से concepts हुए थे. They are all mentioned here. So we had a look at what exactly a set is. Set is a well-defined collection of objects. Then किस तरह से represent कर सकते हैं हम set को? There are two ways. एक तो roster way है जिसमें हम elements write down कर लेते हैं. And the other one is set builder way. Set builder method in which we mention the common property which all the elements possess. Then we had a look at the different type of sets which is based on the number of elements in the set, जिसमें हमने empty set का भी concept देखा. Then we had a look at another very important concept of a set which is subset. So when A is a subset of B, इसका meaning है कि all the elements in A are also present in B. And by convention, null set is taken to be the subset of all the sets. Then we had a look at the concept of Venn diagram, कि जिसमें यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेट्स को इंडिविजुअल सेट्स को क्लोज्ड फिगर से. सो वी सॉ कि हाउ वेन डायग्राम इज अ वेरी यूजफुल टूल टू विजुअलाइज प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन सेट थियरी, स्पेशली प्रॉब्लम्स जिसमें तीन सेट्स इन्वॉल्व हैं. उसमें हमने देखा कि वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू सिंप्लीफाई द सोल्यूशन. देन वी हैड अ लुक एट द डिफरेंट ऑपरेशंस विच आर डिफाइंड ऑन सेट्स. We had a look at primarily four operations. First one, union, then intersection, then difference, जिसका एक part था symmetric difference, and finally complement of a set. There is one more operation remaining which I had not discussed in the last class that I will be discussing in today's lecture because it's very much relevant to the content of today's lecture, and वो है Cartesian product of sets. Then we had a look at several problems based on sets. पहले तो हमने results देखे based on number of elements of a set, काफ़ी important results देखे. And then we had a look at problems जिसमें 2 sets and 3 sets were involved. So I hope all of you are now very much comfortable with the concept of set theory. So आगे बढ़ते हैं. Relations देखने से पहले कि what exactly are relations. As I said कि there is one more operation on sets, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये देख लेते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करने से पहले ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जो इसमें काफी यूज होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो पहले वो देख लेते हैं. सी, ऑर्डर्ड पेयर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. नाउ द ऑब्जेक्ट्स मे बी ऑफ द सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप, and इसमें order important है. So in case you have a question that can we say that ordered pair is basically a set, the answer is no, not really, because इसमें order भी important है, and set में when we write down the elements उसमें order important नहीं होता. Yeah, so x comma y is not the same as y comma x. जहाँ तक इसकी usage की बात है, all of you have already used this a lot. All of you know कि x comma y जो है, it can represent a point in the 2D plane, or it can also be used to represent a complex number x plus I y, or it can also be used to represent a two-dimensional vector x I cap plus y j cap. So ordered pair conceptually काफी important है mathematics में. Ordered pair में equality का मतलब है कि corresponding elements will be equal. So x1 is equal to x2, y1 equal to y2, only then the ordered pairs are said to be equal. Just like we have ordered pair, इसी concept को हम further extend कर सकते हैं. Sometimes we may require an ordered triplet, yeah, which is a collection of 3 objects. And in general, we can have a collection of n objects, जिसमें order important है, known as ordered n-tuple. Now we will see what a Cartesian product of two sets is. So let me first give an example कि जहाँ पे यहाँ पे set A है
A, B, C, B is 1, 2. So when we multiply A and B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं A and B का, तो उसका आउटपुट क्या है? Obviously it is going to be a set. लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? उसके एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स. एंड उस ऑर्डर्ड पेयर में क्या ऑर्डर रहेगा? उस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जो है वो A से रहेगा, सेकंड एलिमेंट B से रहेगा, एंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. सो A क्रॉस B में we will have A1, A2, then B1, B2, C1 and C2. So this is how the Cartesian product is going to look like. So just like we have A cross B, we can also have B cross A. So इसमें you have the same pairs, but the order is reversed. So A cross B and B cross A are not the same. In other words, Cartesian product is not commutative. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की यूजिंग द सेट बिल्डर फॉर्म, बिकॉज इससे जो डेफिनेशन है बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाता है. सो दिस इज द डेफिनेशन. व्हेन यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां पे पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा. सो द ऑर्डर इन विच यू मल्टीप्लाई द सेट्स इज इंपॉर्टेंट. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. We can also take the Cartesian product of a set with itself. In fact, in relations, these type of Cartesian products will be used very frequently. So A cross A क्या होगा? Again, it is simple to understand. Set of all possible ordered pairs in which both the elements are from A. So जैसे कि last slide में हमने ये set लिया था ABC, तो अगर A क्रॉस A लेते हैं, so you can see that we have all possible ordered pairs like this: AA, AB, AC and so on. Any of the sets A और B can be infinite also. उस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी infinitely many elements होंगे. One particular usage of Cartesian products involving infinite sets जो हम लोग काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, वो है the Cartesian plane या 2D coordinate Cartesian coordinate plane. If you take any point in the plane, it is of the form x, y, where x and y both are real numbers. इसका मतलब Cartesian plane क्या है? It is a Cartesian product of the set of real numbers with itself. तो because ये concept इतना important है and इतना frequently used है, इसको एक symbol दिया जाता है r square. Now this concept of Cartesian product can also be generalized, in which we can have more than two sets. So as you can see, if we want to involve three sets, तो three sets का भी हम Cartesian product ले सकते हैं. उसमें उसके elements क्या होंगे? All possible ordered triplets instead of pairs. And उसका जो order है वो determine किससे होगा? किस order में हम sets को multiply कर रहे हैं. Now this is one important result, number of elements of A cross B. This is NA into NB, and it is easy to understand this. इसको हम बहुत easily prove कर सकते हैं. A cross B में we will have all ordered pairs x, y. जहाँ पर x जो है वो A को belong करता है, तो मान लीजिए A में m elements हैं, तो x के लिए कितने choices हैं हमारे पास? m choices. And let us say B में n elements हैं, तो y के लिए कितने choices हैं? n. So कितने possible ordered pairs हो जाएंगे? mn. Yeah. So na cross b is na into nb. Similarly, just like we have r square, we can have r cube, which will represent the entire 3D space. So I'm sure all of you have understood this concept of Cartesian product. It's not very difficult to understand. कुछ problems भी इस पर देख लेते हैं, जिसे solve करके हम और ज़्यादा इससे comfortable हो जाएंगे. So you may pause this video and please try these problems. They are very easy problems. Alright, I hope सभी ने solve कर लिया होगा. Let's have a look at their answers. So these are the answers. Now problems 1 to 4 are quite straightforward, so उसमें explanation वाला ज़्यादा part है नहीं. I'll quickly explain problem number 5. It's actually a PNC based problem. So number of subsets of A cross B. So A cross B में कितने elements होंगे? 8 elements.
तो नंबर ऑफ सबसेट्स जिसमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स है वो कैसे निकालेंगे हम? इट विल बी 8C3 plus 8C4 plus 8C5 and so on up to 8C8, because we can have several cases. We can have subsets जिसमें exactly 3 elements हैं, subsets जिसमें exactly 4 elements हैं and so on. तो इस सम को हम और इजीली निकाल सकते हैं 2 raised to 8 minus 8C0 plus 8C1 plus 8C2 करके. Now we are ready to move on to the next concept of relations, because relations में Cartesian product use होता है, Cartesian product पर ही based concept है. So now let's have a look at relations. So here also let me first give an example. So first example देखते हैं कि A is a set of letters A, B, C, D and B जो है is a set of certain names of students, let's say. Now when I do A cross B, तो A cross B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? यू कैन सी 4 एंड यहाँ पर 6 है तो टोटल 24 आएंगे. बट लेट अस से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली सम ऑफ देम. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉर्म अ सबसेट ऑफ A cross B and आई विल जस्ट सिलेक्ट दीज 4 ऑर्डर्ड पेयर्स. सो आई हैव अ सबसेट ऑफ A cross B हियर. सिमिलरली यहाँ भी देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में A cross B करेंगे तो विल हैव अ टोटल ऑफ 3 into 11 33 elements, but I am not interested in all of them, so मैं एक सबसेट फॉर्म करता हूँ A cross B का जिसमें कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. These subsets of A cross B, they are known as a relation from A to B. So relation की definition बहुत simple है, it's a very simple concept to understand. A cross B का I take any subset that is known as a relation from A to B. So this is the definition. A relation from A to B is a subset of the Cartesian product A cross B. Next इसी से associated कुछ terms देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि relations को हम represent कैसे करते हैं. Now relation is also ultimately a set. तो इसको भी represent करने के दो ways हैं, roster method और set builder method. Roster method we have already seen in these two examples where we have listed down the ordered pairs. Set builder method I will be giving shortly. And एक arrow diagram भी है, just like आप functions को represent कर सकते हैं arrow से. When you have a function from A to B, तो A के किस element को आप किससे map कर रहे हैं, you can show it with the help of arrow. The same thing you can do for relations, and it is not really used that much, so that is why I am skipping this for the time being. So ये जो examples हैं इनमें जो relations mentioned है इनका set builder form देख लेते हैं. So R1 में आपने देखा कि 4 ordered pairs थे. Let's have a look again. Yeah. So you can see that ये जो first letter जो लिया हुआ है it is taken in such a way so that it's the first letter of the name. Yeah. So this is how we represent it in the set builder form. कि X is the first letter of the name Y. Similarly R2 है. R2 में हमने वो ordered pairs लिए जिसमें Y is plus minus under root of X. Alright. Now when an ordered pair belongs to a relation, मतलब वो relation में lie करता है, जैसे आपने देखा था कि A, अमित ये R1 में lie करता है. So we say that A R अमित, इसका मतलब A is related to अमित. A, Ram is not there in R1, so we say that A is not related to Ram. So ये एक notation है which shows कि कौन से ordered pairs हैं एक particular relation में and नहीं है. So as you can see in for R2 9 R3, 9 is related to 3 but 9 is not related to 4, and in general this is how we represent. Now consider this set S. It is the set of all points in the 2D plane in which this equation inequality is satisfied. Now what does this represent? It is very easy to find out. ये represent करता है interior of a circle जिसका center है origin and radius है 1 unit. Now this S, can I say it is a subset of R square? Yeah, and R square Cartesian product है on the set of real numbers. So S basically क्या है? S भी एक relation है. In other words, हम coordinate plane पे कोई भी अगर curve लेते हैं या कोई भी region लेते हैं तो it is basically a relation from R to R.
and this is what I have given in the next point. Next, if I ask you कि how many relations are possible from a set A to a set B, अगर A में m elements हैं, B में n elements हैं. So last time हमने देखा था कि number of subsets का formula क्या होता है, 2 raised to n होता है जिस set में n elements हैं. So I think this point is very easy to understand now. We already had a look at कि number of elements कितने होते हैं Cartesian product में. कुछ और concepts देख लेते हैं associated with relation, कुछ और terms देख लेते हैं. So just like we have domain and range of a function, वैसे ही relation के लिए भी है. Relation में it is very easy to identify कि domain and range क्या होता है. See, relation basically है क्या? It is a collection of ordered pairs. उन सभी ordered pairs के आप first element को ले लीजिए, उनका collection बना दीजिए first element का, वो हो गया domain. Second element का आप लोग collection बना देंगे, वो हो गया range. So it's very easy to determine domain and range of a relation. This is the formal definition using set builder form कि first element लेते हैं हम, that is collection of all first elements is the domain, second elements is the range. So I had given two examples, दो relations मैंने दिए थे. So उनके जो है domain and range इस तरह से हैं. Domain is ABC and range is this. Now as you can see from this example, range जो है वो subset है codomain का. B को हम कोडोमेन ही कहते हैं when you have a relation from set A to set B. रेंज जो है सबसेट है जैसे कि फंक्शन में है, लेकिन यहाँ पे डोमेन भी सबसेट हो सकता है सेट A का. फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है. फंक्शन में वी हैव टू एंश्योर कि नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज लेफ्ट आउट, लेकिन रिलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है. R1 में आपने देखा था इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A जिसमें 4 एलिमेंट्स थे ABCD, लेकिन डोमेन में 3 ही हैं. सिमिलरली एक और मैंने रिलेशन डिफाइन किया था ऑन R रादर, तो उसमें डोमेन क्या है, अगर x, y जो है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. सो x का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1. y कहाँ से कहाँ तक जाता है, -1 से 1 जाता है. सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज फॉर s. सो इस तरह से अगर एक रिलेशन जिसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो या इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो, हम डोमेन एंड रेंज पता लगा सकते हैं. Yeah, this point I have already explained. Now before I go on to types of relation, अपने आप को हम इस ये जो concepts हैं इनसे थोड़ा सा comfortable कर लेते हैं. So again, these are very simple problems. You can pause this and give it a try. In the second problem, we can see कि we have R intersection R prime. Now R and R prime दोनों सेट है एंड सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, सो इट शुड नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग. ऑल राइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स. सो दीज आर द आंसर्स. 1 and 2 में आई हैव जस्ट गिवन द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, तो डोमेन एंड रेंज तो इजीली आ जाएगा, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है. All right, so now let's move on to the types of relations. And ये एक बहुत ही important concept है because problems जो आते हैं मेंस में वो इसी पर बेस्ड आते हैं. Most of the time we have problems जिसमें हमें identify करना होता है कि किस टाइप का रिलेशन है. डोमेन रेंज पे हार्डली कभी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. So here we will consider relations which are defined on a single set A. मतलब रिलेशन किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का. Now why is that so? इसका रीजन ये है बिकॉज इस तरह के रिलेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑकर करते हैं. सो फ्रॉम एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इंपॉर्टेंट. एंड दूसरा ये भी है कि जो टाइप्स हम देखने वाले हैं, व्हेन यू हैव अ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, तो इट इज वेरी अनलाइकली कि वी विल हैव दीज टाइप्स. सो दैट इज व्हाई वी कंसिडर रिलेशंस डिफाइंड ऑन अ सेट. सो सबसे पहले तो है ट्रिवियल रिलेशंस. ट्रिवियल जैसे कि मीनिंग है कि सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस या वेरी इजी टू अंडरस्टैंड या फिर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ये एक्सट्रीम केसेस हैं. सी रिलेशन इज आफ्टर ऑल अ सबसेट. अब सबसेट नल सेट भी होता है, सो रिलेशन नल सेट भी हो सकता है. सो इफ द रिलेशन इज अ नल सेट, then
इट इज नोन एज एन एम्प्टी रिलेशन, जिसमें नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. अब देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि सम ऑफ एनी टू एलिमेंट जो है 10 से ज्यादा होना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है इस सेट में. सो इट्स एन एम्प्टी रिलेशन. वहीं दूसरा एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, व्हेन द रिलेशन इज द सेम एज ए क्रॉस ए, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देखा था हमने लास्ट टाइम. सो व्हेन द रिलेशन इज ए क्रॉस ए, दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल रिलेशन. इसका मतलब इसमें सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट. एज एन एग्जाम्पल आप देखिए, देख सकते हैं. नाउ all the ordered pairs of A cross A will satisfy this relation. So hence it is a universal relation. So these are not the very important types. अब हम important types पर जाते हैं, but उससे पहले let me give some examples, because जो types हैं relation के, I'll be explaining them with the help of these examples. So ये examples देख लेते हैं. So यहाँ पे I am defining two relations. एक R1 है which is defined on the set T of all triangles. तो इसमें T1, T2 दो triangles कब included हैं, जब वो congruent है. And R2 जो है it is defined on the set L of all lines in a plane. तो इसमें L1 and L2 कब included हैं, when they are perpendicular. एक और सेट देख लेते हैं R3 which is defined on the set P of all people in a particular locality. So x, y ये जो ऑर्डर्ड पेयर है दो लोगों का, ये इसमें कब इंक्लूड होगा, when y is a brother of x. इनफैक्ट इसी एग्जाम्पल से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम रिलेशंस क्यों कहते हैं. बिकॉज इफ यू कंसिडर द सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, लेट अस से उन सेट को S बोल देते हैं, एंड इफ यू कंसिडर S क्रॉस S, तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. लेकिन हम सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते. हमारा इंटरेक्शन उनसे ही होता है जिनसे हमारा किसी तरह का एक रिलेशन हो, किसी तरह का एक कनेक्शन हो. जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा रिलेटिव हो, ब्रदर हो, पेरेंट हो, या कोई टीचर हो, स्टूडेंट टीचर हो, फ्रेंड हो. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, बट सम ऑफ देम, बेसिकली अ सबसेट ऑफ S क्रॉस S. तो ये जो मैथमेटिकल टर्म है रिलेशंस, इट एक्चुअली हैज अ कनेक्शन विद the English word relations. Okay, now let's have a look at the important types. तो सबसे पहले देखते हैं कि reflexive relation क्या होता है. R is said to be reflexive if A, A belongs to R. मतलब every element जो है वो अपने आप से related अगर होता है, then it is known as a reflexive relation. Okay, let me explain this with the help of the examples which I have just mentioned. So ये R1 देख लेते हैं. ना अगर हमें पता लगाना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो कैसे पता लगाएं, बस आपको T2 को T1 से रिप्लेस कर देना है. तो T1, T1 क्या होगा, when T1 is congruent to T1. Is every triangle congruent to itself? Well yes, mathematics में we do take that to be true. तो इसका मतलब T1, T1 इस तरह के हर ऑर्डर्ड पेयर जो है R1 में होंगे. सो R1 जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. नेक्स्ट R2 को एग्जामिन करते हैं, तो L2 को L1 से रिप्लेस कर देते हैं. तो L1 परपेंडिकुलर टू L1, इज दिस ट्रू, इज एवरी लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? वेल नॉट एट ऑल. सो R2 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या बिकॉज एवरी एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ. सिमिलरली R3 का भी आप लोग कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी गेट कि ओनली R1 इज रिफ्लेक्सिव, R2 एंड R3 आर नॉट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन. सो जैसे कि इसका नेम है, ये बेसिकली इट स्टेट्स दैट कि अगर x, y R में है, देन y, x भी R में है. या दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स द नेम सिमेट्रिक. ओके, लेट्स रिटर्न बैक टू दिस एग्जांपल. अगर T1, T2 R1 में है, तो क्या T2, T1 भी है? यानी कि अगर T1 is congruent to T2, is T2 also congruent to T1? Yes. Hence, the relation R1 is symmetric. Similarly, आप easily find out कर सकते हैं R2 is also symmetric. लेकिन R3 symmetric नहीं है, या सोचना इस बारे में. Next one is transitive relation. So R is said to be transitive if मान लीजिए x, y R में है, y, z
भी R में है, देन आई कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम x टू z, यानी कि x, z भी R में है। अगर ऐसा ट्रू है देन द रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। सो लेट अस रिकॉल जो रिलेशन R1 डिफाइन किया था। मान लीजिए T1 एंड T2, T1, T2 है उसमें, यानी कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मान लीजिए T2, T3 भी है, यानी कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। नाउ डज इट मीन T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3? द आंसर इज यस। सो जो रिलेशन R1 था इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब वही R2 को भी एग्जामिन कर लेते हैं। मान लीजिए L1 L2 R2 में है, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मान लीजिए L2 L3 भी है R2 में, सो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। डज इट मीन L1 एंड L1, L3 आर इन R? In other words, does it mean that L1 and L3 are perpendicular? ये जो लाइंस हैं ये इन अ प्लेन है, सो ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट L1 एंड L3 पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सो R2 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन R3 है, ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। सो ये तीन टाइप के रिलेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, विच इज नॉट अ न्यू टाइप बट इट इज बेस्ड ऑन द अर्लियर वंस। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ वन क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज कि इक्विवेलेंस रिलेशन अलग से डिफाइन करने की क्या जरूरत है? इसका आंसर ये है कि वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ नंबर्स, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये इसी कॉन्सेप्ट का जनरलाइजेशन है। इफ आई वांट टू डिफाइन इक्वालिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रादर देन नंबर्स, तो उसके लिए राइट टर्म होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस के लिए ये होना जरूरी क्यों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव? उसका रीजन ऐसा है कि अगर आप नंबर्स की इक्वालिटी देखें, इफ x इज इक्वल टू y, सो x इज इक्वल टू x होता ही है, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। इफ x इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू x, मतलब इक्वालिटी सिमेट्रिक भी होती है। एंड इफ x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू z देन इज x इक्वल टू z? यस। तो इक्वालिटी, ये जो रिलेशन है इसके ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, इसी पर बेस्ड इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पर हम इन जनरल दो ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट ऑफ इक्वल बोल सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि गिवन एनी रिलेशन हाउ डू वी फाइंड आउट कि ये इन तीन टाइप्स में से कौन सा है। सो इसी पर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो आई हैव गिवन हियर 5 रिलेशंस, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि उनका टाइप क्या है। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं मोस्टली। एंड हियर आई हैव गिवन ओनली 5 प्रॉब्लम्स बिकॉज इन द होमवर्क आई विल बी गिविंग यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुकलेट, तो उसमें अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हियर जस्ट इन द 4th प्रॉब्लम प्लीज मेक देयर इज वन स्लाइट करेक्शन। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर अल्फा है, इट्स अ नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा, बस आप वो एक करेक्शन कर लेना। एंड now you can pause the video and solve this. So I hope सभी ने सॉल्व कर लिया and I hope सभी को आ गया है अच्छे से कि कैसे पता लगाते हैं। So these are the answers. If you have any questions, कोई भी अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, please feel free to contact me. So जितने भी कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो कवर हो गए हैं। So as such now this topic is over. एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं विच आर नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई हैव इंक्लूडेड देम, क्योंकि इन जनरल मैथमेटिक्स में वो इंपॉर्टेंट है। सो 3 बेसिक टाइप के तो रिलेशंस हमने देख लिए एंड वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही मेंस में पूछे जाते हैं। बट एक और टाइप है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एज यू कैन सी फ्रॉम इट्स नेम, ये एक्चुअली सिमेट्रिक रिलेशन का ऑपोजिट है। सिमेट्रिक में क्या है कि मान लीजिए x, y अगर R में है तो y, x भी होता है। एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि अगर x, y है तो y, x नहीं हो सकता है, और अगर है तो वो एक ही केस में होगा कि x शुड बी इक्वल टू y। तो क्या इस तरह के भी रिलेशंस हैं? वेल यस, द आंसर इज यस। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। सो एज यू कैन सी, ये जो ऑर्डर रिलेशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या है? एक ही पॉसिबिलिटी है कि x हैज टू बी इक्वल टू y। दूसरा ये है, इसका मीनिंग है x डिवाइड्स y। यहाँ पे द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। x डिवाइड्स y का मतलब है x इज अ फैक्टर ऑफ y। तो अगर x y का फैक्टर है एंड y x का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है?
x and y आर इक्वल। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए है, डिफाइंड है, known as equivalence class. So equivalence class है क्या? See, if you consider any equivalence relation, let us say वो सेट A पे डिफाइंड है। अगर मैं सेट A का कोई भी एक एलिमेंट ले लूं तो उससे रिलेटेड कई सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं उनका सेट बना देता हूं तो वो होता है इक्विवेलेंस क्लास। नाउ हो सकता है कि इतना अच्छे से समझ में ना आया हो, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कंसिडर दिस एग्जांपल। सो यहाँ पे एक रिलेशन है जो इंटीजर्स पे डिफाइंड है इन दिस वे कि x, y इसमें लाई करेगा व्हेन x - y इज डिविजिबल बाय 4। सो दिस यू कैन इजीली फाइंड आउट कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसमें अगर मान लीजिए इंटीजर में मैं कोई भी इंटीजर उठा लूं, जैसे यहाँ पर मैंने 3 पिक किया है, तो 3 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं? ये सारे एलिमेंट्स जो हैं 3 से रिलेटेड हैं। इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, लेकिन एज फार एज दिस प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड x - y इज डिविजिबल बाय 4, इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये सारे इक्विवेलेंट है या फिर इनडायरेक्टली इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी। तो यही इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो इक्विवेलेंस क्लास से बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये एक सेट है, इस सेट का हमें एक पार्टीशन भी मिल जाता है, क्योंकि R में आप देख सकते हैं कि 4 इक्विवेलेंस क्लास होंगे बेसिकली, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, 1, 2 एंड 3। तो ये एक पार्टीशन भी प्रोवाइड करता है हमें किसी भी रिलेशन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास का। जैसे L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1, L2 R में लाई करेगा, तो यू कैन इजीली शो दैट पैरेललिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें अगर मैंने मान लीजिए सेट ऑफ लाइंस है, उनमें से एक लाइन पिक कर लिया y = x, तो उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? उसका इक्विवेलेंस क्लास होगा द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू y = x, मतलब ऑल लाइंस विथ स्लोप 1। ओके, सो इसी के साथ जो है दिस टॉपिक इज नाउ ओवर। ऑल द कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आई हैव डिस्कस्ड। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक और छोटा सा रिमार्क है, वो है रिलेशन एंड फंक्शन का, इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। सी, फंक्शन जो है ना, ये सबसेट है रिलेशन का। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो रिलेशन फंक्शन कब होता है? आई गेस नाउ दैट यू ऑलरेडी नो फंक्शंस वेरी वेल, आप लोग ने पता लगा लिया होगा। रिलेशन फंक्शन तब होता है जब उसके डोमेन में जो सेट ए है जिस पर रिलेशन डिफाइंड है, उसके डोमेन में पूरा का पूरा सेट ए आता है, मतलब नो एलिमेंट इज लेफ्ट आउट। दूसरी बात यह है कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, वो एक ही एलिमेंट से मैप्ड होगा। एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से मैप नहीं हो सकता। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो जो रिलेशन है उसे हम फंक्शन भी कहते हैं। सो रिलेशन एक्चुअली एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। ऑल राइट, सी यू देन, टेक केयर।